warm hello and welcome to you all friends. Welcome to Dr. Prachiti Punde's channel. Today we are going to talk about anxiety. Yes, the most common stress disorder in today's world. We are seeing everybody around here is rushing, hushing, following time schedules, following the timings, just continuously occupied with the future work they have to do. यानी आज हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि दुनिया में आजकल सभी लोग वक्त के पीछे भाग रहे हैं, फ्यूचर में भाग रहे हैं, इस काम के बाद वो काम करना है। तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, हम आगे के कामों के बारे में सोचते हैं। whenever we are doing a work, a certain kind of task in the present situation, at that moment, at that very moment, we are not in the present mindful state of awareness. Rather, we are worried about or anxious about the future work that we have to do immediately, or maybe in a week, in a month's time, and we are continuously preoccupied with those thoughts. So, anxiety is future based expectations of either self, of either work, of time, of energy, of relationships, of any hustle and bustle that you are carrying through your thoughts, beliefs and patterns in your own mind. So future based expectations यानी आगे की, फ्यूचर की, भविष्य की सोच। भविष्य की सोच के साथ सिर्फ दो ही चीज़ें आ सकती है। A person can get only two things with the future based expectations. It could be one, fearfulness, either it could be two, faithfulness. So faithfulness versus faithfulness. Where there is fear, faith cannot exist, and where there is faith, fear won't exist. Faith यानी क्या? Faith यानी किसी एक चीज़ पे विश्वास, खुद पे विश्वास, खुद पे वो फेथ, वो भरोसा, ईश्वर पे फेथ, भरोसा, अच्छाई पे फेथ, भरोसा, पेशेंस पे फेथ, भरोसा, सभी अच्छे कामों पे फेथ, भरोसा, जिससे हमें एंग्जाइटी नहीं होगी। हमें ये सोच नहीं लगेगी बार बार कि क्या मेरा ये काम होगा, क्या लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, अगर मुझे शादी में जाना है तो क्या मैं अच्छी दिखूंगी, अच्छा दिखूंगा, क्या मैं प्रेजेंटेबल रहूँगा, क्या मैं ऑफिस में अच्छे से डील कर पाऊँगा, क्या मैं बिजनेस मीटिंग हैक कर पाऊँगा, क्या मैं ऑफिस का अगर इंटरव्यू है तो वो हैक कर पाऊँगा। फ्यूचर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस। सो अगर फेथ है कि हाँ, अगर मुझे खुद पे भरोसा है, अच्छाई पे भरोसा है, तो हाँ मैं ये सारी चीज़ें आराम से कर पाऊँगा। नो मैटर there is some amount of anxiety, but with the faith in good, the faith in all the right things that will happen with the right person, with the right attitude, the faith in oneself, the faith in our own confidence, that will keep us moving ahead despite of the fearful situation. And where there is faith, fear cannot exist no longer, friends. So always carry faith instead of fearfulness. That's an easy way to convert your fear into anxiety and your anxiety into faith again, so that you get good at work and you drive the anxiety away. Friends, people thrive in an environment which meets their innate emotional needs as well as the physical needs. हर इंसान को लाइफ में जीने के लिए बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत बहुत होती है। वो है उनकी इमोशनल यानी भावनिक ज़रूरतें, और सेकंड इज़ फिजिकल यानी शारीरिक ज़रूरतें। पीपल आर इंट्यूटिवली केपेबल ऑफ फुलफिलिंग दीज नीड्स। हर इंसान अपने आप में ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए सक्षम होता है। बट when a person does not identify with these needs, the innate emotional needs and the innate physical needs, when a person does not identify with these needs and does not fill in up those areas, those needs, and is not capable of creating the environment that is needed for completing these needs, then the end result can be anxiety. So anxiety तब पैदा होती है जब इंसान खुद की ये ज़रूरतें, इमोशनल नीड्स और फिजिकल नीड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उनके लिए वो सक्षम वातावरण निर्माण नहीं कर पाता,
और उन्हें वो पूरा नहीं कर पाता, तब एंग्जाइटी पैदा होती है. सो एवरी पर्सन is intuitively capable of feeling this anxiety, and anxiety at this level can be good. It works towards us. Just as suppose hydration. जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी पीने की इच्छा होती है, तो दैट इज एंग्जाइटी कि बॉडी बता रही है कि तुम्हें पानी पीना पड़ेगा, बॉडी का हाइड्रेशन कम हो रहा है. पर उस वक्त अगर आप पानी नहीं पियोगे और थोड़ी देर चली जाएगी तो बाद में एंग्जाइटी पैदा होगी. This anxiety is developed so that you focus on your own self, you get back to your body and you fulfill the need for hydration. So it is a very simple process if identified at the right time. पर क्या होता है जब बार बार आप किसी चीज़ को लेके अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, जैसे ऑफिस का काम है, अगर उस चीज़ का आपको टेंशन आ रहा है और बार बार आप उस एरिया को आइडेंटिफाई करके सीबीटी प्रैक्टिस में एज अ लाइफ कोच मेरे क्लिनिक में मैं लोगों को ये जगह आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्कशीट्स देती हूँ. एंड इंडिविजुअली ही ये काम हो सकता है क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो हर एक के हिसाब से एंग्जाइटीज़ भी अलग अलग होती है, उनको सॉल्व करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं. ईच एंड एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन हिज और हर ओन सेल्फ एंड द प्रोसेस टू सॉल्व दीज एंग्जाइटीज़, टू आइडेंटिफाई द एंग्जाइटीज़ कुड बी डिफरेंट. What I suggest in CBT practice is just try and understand, identify these areas of anxieties, sit with yourself, write down with a pen and paper. Every day if you have some kind of anxiety, throughout the month you should write down. After writing down, you can identify some repeated patterns in these areas. With these repeated patterns, you can then just identify what areas are there in your life where you find anxiety more common. If this anxiety is built in over a period of time, I'm just sorry, it's very difficult to sit like this. If this anxiety is built in over a period of time, then what you can do is, in CBT therapy, I can suggest you 3 therapies to solve this anxiety, which are quick, easy to do, and you can do it from the comfort of your home. If still the anxiety is not resolved and it lands up into more stress, creating stress disorders, creating lifestyle modified diseases, then you can always consult a life coach. So the 3 processes are, the first is breathing techniques. You can just take in deep breaths and leave out deep breaths in a count of 4, 4 and 4. आपको सांस लेनी है जोर से, 1, 2, 3, 4 नंबर्स में आपको सांस अंदर लेनी है, 4 नंबर्स तक आपको रुकना है और 4 नंबर्स तक आपको सांस छोड़नी है. जब एंग्जाइटी आएगी तो ये चीज़ आप करके देखना. द सेकेंड मेथड इज चीव इट आउट एंड थ्रो इट. जैसे आप च्युइंगम चबाते हैं और थ्रो कर देते हैं, वैसे ही एंग्जाइटी को ऐसे इमेजिन करो कि आपने उसे चबाया है और वो छोड़ दिया. अब वो एंग्जाइटी आपके साथ नहीं है और आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो. द थर्ड टेक्निक इज just try and go beyond the assumptions. What assumptions are you carrying with this anxiety? इसे आइडेंटिफाई करना और उसके आगे का जाके सोचना. यानी क्या कि आप अगर पार्टी में जा रहे हो तो आपको ये एंग्जाइटी हो सकती है कि मैं अच्छा दिखूंगा कि नहीं, क्या होगा, तो उसके अंडरलाइन थॉट्स क्या हो सकते हैं. अंडरलाइन थॉट्स ये हो सकते हैं कि मेरी वो फ्रेंड है ना, वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी मुझसे, तो आप इसको कम कैसे कर सकते हो कि हाँ वो एक ही फ्रेंड ज़्यादा अच्छी दिखेगी पर बाकी के 9 फ्रेंड्स हैं वो उनसे तो मैं ही अच्छी दिखूंगी, तो आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाएगी. अगर काम की जगह पे आपको ऐसी एंग्जाइटी हो रही है कि मैं बॉस के सामने अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा या नहीं, तो उसके आगे का जाके आप अज्यूम क्या करते हो वो सोचना कि बॉस के आगे अगर मैं अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया तो मेरी प्रमोशन नहीं मिलेगी. तो आप ये सोचना कि प्रमोशन नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, पर आगे के 10 प्रेजेंटेशंस में मुझे और 10 चांसेस हैं, तो शायद मुझे प्रमोशन मिल भी सकती है. तो इस तरह से आपको आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. तो ये 3 तरीके हैं फ्रेंड्स जिस वजह से आप एंग्जाइटी छोड़ सकोगे. इसे आपको रिपीटेडली बार बार दोहराते हुए आगे बढ़ना है, तभी आपकी एंग्जाइटी आपके कंट्रोल में आएगी और फिर आपको तकलीफ नहीं देगी. एंग्जाइटी होना अच्छी बात होती है अगर वो कंट्रोल में है तो. जब एंग्जाइटी होती है तो खुद की इनेट इमोशनल नीड्स और फिजिकल नीड्स क्या है जिस वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, ये ज़रूर जानने की कोशिश करना. तब तक के लिए धन्यवाद.